And welcome back to channel. Let's start with our today's video. Today we are going to solve a practical based on retirement of a partner. Here the question says that Ram, Shyam and Mohan were in partnership. Profit and losses were in the proportion of 3:2:1. And here's the balance sheet given to us. Now here the following points that is given in this question, and it says that the goodwill of the firm is valued at 2 times of average super profit of last 3 years. That means in order to calculate the goodwill, we need to calculate the average profit, and then we are going to calculate the value of super profit. Taking into consideration of risk of the business, the normal profits of the firm estimated at 5 lakh every year. तो हमारा जो normal profit है वो उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है. We just need to calculate the amount of average profit, and obviously the average profit will be calculated by adding these values, that is 6 lakh plus 550 plus 575, and after adding all the three we will divide by 3. that means the average will be 575 यानी कि 5,75,000. तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना हो गया, यहाँ पे साफ साफ क्लियरली हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 575. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. The average profit we calculated was 5,75,000 and normal profit was 5 lakh. The difference of that will be equal to how much? 75,000. That means कि super profit हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 75,000. बट हम अगर गुडविल के रेफरेंस पे बात करें तो हमारी गुडविल के लिए क्या बोला था? ट्वाइस ऑफ सुपर प्रॉफिट. दैट मीन्स 2 इंटू कितना कर देंगे? 75,000 कर देंगे. देन द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1,50,000. दिस इज हाउ we need to calculate the value of goodwill. Now moving further, these are the further points for that will be used while calculating the revaluation account. As the first one says that expenses going to be brought down to 37,500. As we can see in the balance sheet, the original expenses were 45,000. now it has been reduced to this value. that means कि हमारी liabilities decrease हो गई, और liabilities decrease हो जाती है तो revaluation में किस साइड आती है? obviously credit side, that is the buy side. The second point says that investments are revalued at how much? 72,000. इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू कितने की थी? 80, आज हो गई 72. दैट मीन्स 8,000 के इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, एंड यू आर बियरिंग अ लॉस ऑफ 8,000. तो यू विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज़. तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया. फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिवैल्यू वैल्यू दे रखी है और लूज टोल की वैल्यू दे रखी है, तो वी नीड टू कंपेयर. फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी है? 225, जबकि लेटेस्ट कितनी होगी? 240 थी. तो वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड, तो ये किस साइड आएगा? बाय साइड आएगा. एंड द लूज टूल इज 36,000 वाइल द अर्लियर वन 40,000. तो ये हमारा डेबिट साइड आएगा. क्या लिखेंगे? टू लूज टूल हाउ मच? 4,000 रुपीज़. तो इस तरीके से हम अपना क्या कर लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रिपेयर कर लेंगे. नाउ दिस सम अदर फर्दर पॉइंट्स आल्सो सेइंग दैट provision for doubtful debts to be increased by 19,500 and the second point is claim is 18,000. तो आपके पास जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो 10,000 का है, बट यू नीड टू कैलकुलेट इट एज 19,500. तो पुराना प्रोविजन 10 का है, नया 19,500 का है. यू नीड टू क्रिएट मोर. तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 9,500 रुपीज़. वेयर एज इट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 18,000. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आप देखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कितने का है? टोटल 48,000 का है. तो हमने फंड तो बना रखे 48,000 के, जिसमें से 18,000 हमें किसी को देना पड़ेगा. दैट मीन्स आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स वी आर लेफ्ट विद हाउ मच? 30,000, जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में हो जाएगा. And this remaining 8,000 will be transferred to the balance sheet under the head of liabilities that needs to be payable. So that's how you are going to calculate the value of revaluation. That is just similar with the concept of admission. Admission पे भी हम जैसे कर रहे थे हम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे. You can directly solve and calculate the value as losses rupees 6,000. Now thereafter completing the basis aspect, we are going to start with the capital account. First we will start with the placing of capital of all the partners. Then रिजर्व फंड वॉज देयर इन द बैलेंस शीट, तो मैंने उसको क्या कर रखा है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. एज आई टोल्ड यू वर्कमैन कंपनसेशन जो बचा था आपका 30,000, वो भी आपका क्या होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ राम्स एंड मोहन्स गेम. व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल. आप लोग को पता होगा स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या कर रखी थी? वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट की थी. दैट वॉज इक्वल टू हाउ मच? 1,50,000.
एंड आउट ऑफ दैट अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें उसका शेयर कितना होगा, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमारा देखिएगा कि हमारा शेयर किसका हो गया, श्याम रिटायर कर रहा है एंड श्याम रिटायर्स एट द रेशियो ऑफ 2/6। 2/6 का मतलब 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 50,000 हो गए। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी बची, 50,000। आपने ऊपर नोटिस किया था रेशियो कितना दिया था, 3:2:1। दिस पार्टनर्स रिटायर्ड, दैट मीन्स कि न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:1। और यही हमारा अभी केस के लिए क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स 50,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में। तो दैट इज द व्हाट द एडजस्टमेंट हैज़ बीन डन। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वो एडजस्टमेंट कर दोगे, 50,000 को 3:1 क्या लिखेंगे, बाय राम्स, बाय मोहन और श्याम के कॉलम में। एंड देयर आफ्टर वी नीड टू सॉल्व टू श्याम, राम एंड मोहन की कॉलम में। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंस राम टुक इन्वेस्टमेंट एट 70,000 वी नीड टू रिड्यूस दैट कैपिटल। भाई राम ने इन्वेस्टमेंट लेके चला गया है तो उसके कैपिटल में से रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, तो हमने वो अमाउंट यहाँ पे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। द कंपनी हैज़ पेड श्याम एज ₹50,000। श्याम को उन्होंने क्या किया है, 50,000 रुपये दिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट द कंपनी इज गोइंग टू पे हाउ मच, 50,000 एंड द बैलेंस विल बी पेड एज अ लोन। तो अगर हमें करना क्या होगा, जैसे एडमिशन में कर रहे थे वहाँ तक का पूरा पॉइंट होगा। बस ध्यान रखिएगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पैसे को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एज अ लोन ट्रीट करते हैं। तो बाकी सारे पार्टनर्स की बैलेंस फिगर को हम बैलेंस डी बोलेंगे, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके बैलेंस फिगर को पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से क्या किया जाता है, ट्रीट किया। दैट इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अ रिटायरमेंट। नाउ स्टार्टिंग विद बैलेंस शीट, एज वी कैन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमें एडमिशन पर ये सारे फैक्ट्स करने आते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, बिल्स पे में कोई चेंज नहीं था। एक्सपेंस ओइंग को देखिए हमने अपडेट कर दिया। लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो बाकी जितने का क्लेम आया बस वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, बाकी सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। श्याम्स लोन देखिए वो हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड मोहन। कैश की बात करेंगे, दिस इज द अपडेटेड कैश, क्योंकि हमने 50,000 का पेमेंट किया तो हमारे कैश अकाउंट में हमारे पास कितने रुपए थे उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा, एंड दैट वाज अमाउंटेड टू 90,000। आउट ऑफ दैट 90,000 हमने 50,000 रुपये क्या कर रखा है, पे कर दिया शाम को, तो बचा अकाउंट में कैश में कितना बचा, 40,000 रुपये। देखिए प्रोविजन हमने अपडेटेड प्रोविजन लगा दिया, स्टॉक की लेटेस्ट वैल्यू, फैक्ट्री प्रीमिसेस की लेटेस्ट वैल्यू एंड लूज टूल की प्रीमिस वैल्यू। So that is how you are going to solve a full-fledged question of a retirement account. That's all for the day. Thank you everyone. Have a good day.